चले जी अस्सलाम वालेकुम all. So this is our 24th session. So inshallah I think six more classes after this class, and we should be done for the course. So this Friday आपका tutorial session भी होगा, and a TA will be solving some of the problems related to the concepts we have been discussing in the last 2 or 3 classes, including this one. So आज हम अपनी ये वेव प्रोपिगेशन की जो डिस्कशन है in dielectrics and conductors, we gonna wrap that up, and inshallah from the next week we'll talk about the reflection and transmission of electromagnetic waves. So quickly, आप लोगों के लिए a reminder, already you know this thing, that we are looking over this wave equation or propagation constant, jo the one we talked about. You have seen it. This one is j omega mu sigma plus j omega epsilon. इसको हम डिस्कस कर रहे थे, and we know that that the solution of this equation is the sum of the forward and the backward wave जो है. अच्छा, last time I want to start discussion. I want to start the discussion from the good conductors. कुछ चीजें उसके ऊपर I want to say before we move forward. So good conductors के ऊपर, you remember that we talked about that conductivity is very high as compared to omega epsilon, and basically your reflection, your this propagation constant is actually j omega mu sigma, or this is equal to omega mu sigma over 2 and plus j omega mu sigma over 2, where we last time हमने किया था जिसमें this is alpha and this is beta in a good conductor. अच्छा, इसको थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से. And let's say that we have a block as an example, rectangular coordinate system के अंदर है, and we have a block of a very good conductor जिसके अंदर से electromagnetic wave गुजर रही है. And let's say कि the electromagnetic wave which is passing is comprising of only forward wave. There is no reflection. Let's assume that for simplicity, क्योंकि हमने एक पॉइंट मेकअप करना है यहाँ पर. E minus alpha z cos omega t minus beta z ax. Remember, हमने अपनी जो लास्ट जब हमने ये इस वेव इक्वेशन को डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी, सो वी आर ऑलरेडी अज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स एंड पोलराइजेशन इन x एंड y. सो हम उसी assumption के साथ ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, where the wave is propagating in the z direction. ठीक हो गया? So this is an electromagnetic field. अच्छा, अब क्योंकि alpha is equal to omega mu sigma over 2, you can see this thing, that this wave is going to be attenuated with respect to this alpha, and this alpha is in turn dependent upon the frequency and the conductivity of a medium. आप ये देख सकते हो कि अगर conductivity बहुत high होगी तो ये वेव बहुत जल्दी टेनुएट हो जाएगी. इन अदर वर्ड्स, ये हम साइनोसाइड्स देख रहे हैं, राइट? सो ये अगर साइनोसाइड इसके अंदर है, सो ये अटेनुएट हो रही है. अगर ये बहुत बड़ी कंडक्टिविटी है तो मे बी दिस वुड attenuate right away in that conductor right away. So it all depends about the frequency and the conductivity. So हम अगर थोड़ा सा इसको quantify करें, right now I'm more interested in this attenuation thing. Obviously phase तो जो है सो है. So if I quantify a little bit,
I can say that अगर मैं सिर्फ attenuation को देख रहा हूँ, I can say that for z is equal to 1 over alpha, 1 over alpha, when this z is equal to 1 over alpha, then my wave will be attenuated by how much? कितनी हो जाएगी? It will be attenuated by approximately 37%. ये वही जो आपका जब आप एक्सपोनेंशियल जब RLC सर्किट के अंदर भी आप जो एक्सपोनेंशियल डिकेज देखते थे, बिल्कुल उसी तरह की चीज है. सो आई वुड कॉल दिस z, इन अदर वर्ड्स, ये जो मेरा ब्लॉक था जो मैंने ऊपर बनाया था, वो z जो कि 1 ओवर अल्फा के बराबर है, ऑब्वियसली डायमेंशंस मीटर्स में आ जाएंगी जब z इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा. इस z को मैं एक नया नाम दे देता हूं और मैं कहता हूं डेल्टा, एंड आई कॉल दिस गाय एज skin depth. Skin depth. This z is equal to 1 over alpha. I call that as a new symbol delta, and I will call it the skin depth. So in other words, जो मेरी skin depth है, skin depth किसके equal है? Delta is equal to 1 over alpha for the good conductors, और ये किसके equal हो जाएगी? This would be equal to 2 over omega mu sigma. 2 over omega mu sigma, और I can write it omega को मैं 2 pi f की फॉर्म में लिखूंगा, तो this would become 1 over pi f mu sigma. So this is the skin depth. Okay, as an example, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से वो जो मैंने ऊपर ब्लॉक बनाया है, ठीक है, ये वाला, लेट्स से कॉपर का ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक है. If I say this is a copper block, so for copper, this sigma is 5.8 into 10 to 7 Siemens per meter, or let's say copper is more like non-magnetic, and I can call it as mu is same as mu naught. So if I make a table, frequency versus the skin depth delta, so और मैं ये copper की value substitute कर दूं, so for a frequency of 60 hertz, the skin depth is 8.53 millimeters, and for a frequency of 100 megahertz, the skin depth is 6.61 into 10 to minus 3 millimeters. And if for a frequency of, let's say, 10 gigahertz, this guy is 6.67 into 10 to minus 7 meters. ये मैं किधर जा रहा हूँ? Where I'm heading by doing all this thing? ये जो the table which I just made, it is telling me that in a good conductor, the electromagnetic wave propagation is not possible. Actually, you can see at 60 hertz, the copper block, ये जो metal का block है, इसके अंदर wave within 10 millimeters, ये 37% decrease हो जाएगी, and you can imagine within even before a centimeter, this will be gone. It will be fully attenuated. And at higher frequencies, this becomes more and more smaller and smaller. So message हमें ये मिल रहा है कि good conductor के अंदर propagation नहीं हो सकती because of all this. And these one deltas is called skin depth. अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपके दिमागों में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा, अच्छा मैं यहाँ पर 60 हर्ट्ज लिख रहा हूँ और ये कॉपर में ये है, तो हमारे घर में जो तारें लगी हुई हैं, in our home, those are all copper wires, right? Copper wires, तो उसमें ये करंट्स और ये चीजें कैसे फ्लो हो रही हैं, what's going on there? So यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हैंड वेविंग आर्गुमेंट दे देता हूँ, बिकॉज उसके वी नीड टू डू मोर एग्जैक्ट मैक्सवेल्स इक्वेशंस देयर. लेकिन अभी जो मैंने ऊपर बात लिखी है, दिस इज फॉर द ब्लॉक
मींस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ब्लॉक के अंदर मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन सिमिलर चीजें सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स जो हमारे घरों में लगे हुए हैं उस पर भी ट्रू हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स जो हैं दे आर मोर दे आर इन द सिलेंड्रिकल शेप, और मैक्सवेल्स इक्वेशन जो वेव इक्वेशन हमने लिखी है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व होगी। सो वंस वी सॉल्व दीज this equation, Maxwell equation for the cylindrical conductors, what happens, it shows us कि वो जो electromagnetic wave है it mostly travels on the periphery of the conductor, right? और अंदर जो है वो इतनी ट्रेवल नहीं करती, अंदर लॉसेस हो जाते हैं। सो बेसिकली दीज कंडक्टर्स, cylindrical conductors, they make the waves travel along their surface। इस चीज को हम स्किन इफेक्ट भी कहते हैं, और इसकी जो रूट्स हैं वो यहीं से मिल रही हैं कि एक गुड कंडक्टर के अंदर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती, लेकिन सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स के अंदर वो पेरिफेरी पे ट्रेवल करती है। और अब आप ये सोच सकते हो एज द फ्रीक्वेंसी बिकम्स हायर एंड हायर, ये इवन सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स के ऊपर भी इतने लॉसेस हो जाएंगे कि चीजें अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे, एंड वी विल नॉट हैव ए बेटर सिस्टम। तभी अगर आपने कभी देखा हो और से अपनी सर्किट्स लैब के अंदर, सर्किट्स लैब के अंदर आपने सर्किट्स लैब की है ना आप लोगों ने, कि पेंडेमिक की वजह से नहीं कर सके? की है आप लोगों ने? जी यस सर किया। की सर है। हाफ किए। अच्छा चलो हाफ किया आपने। फंक्शन जनरेटर मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलाया कि नहीं चलाया? आई गेस सर चलाया था चलाया था। शायद। उसके साथ तार जो थी वो किस किस्म की लगाई थी? कोएक्स केबल काले रंग की लगाई थी, ये आम ये जो हमारे घरों में वो इलेक्ट्रिक तार होती है वो लगाई थी? याद है? सर शायद काली वाली लगाई थी सर, याद नहीं है सीधे से। So basically the idea is this, ये जो cylindrical conductors है ना, these becomes, they don't work at high frequencies because of all the skin effect problems. So at high frequencies we use these coax cables like जो कि transmission lines हैं actually, और even आपकी frequency, क्योंकि वो भी conductors हैं, वो भी metallic conductors हैं, even जब आपकी frequencies higher and higher जाती जाएंगी तो ये ट्रांसमिशन लाइंस भी खत्म हो जाएंगी, एंड देन वी गो टू दोज वेव गाइड्स, जिसका एक एग्जांपल हमने क्लास में किया। आई डोंट नो वेदर विल बी एबल टू डिस्कस वेव गाइड्स हियर और नॉट, बट वेव गाइड्स हैं, ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे, दीज मेटल्स डोंट वर्क ऑल बिकॉज ऑफ द स्किन इफेक्ट। यहाँ पर जो एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है वो ये है कि एक गुड कंडक्टर के अंदर जो है जो वेव प्रोपेगेशन है उसका जो अटेन्युएशन है दैट्स अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फिनोमेना। हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर यू विल हैव a huge attenuation and your system will not work. You need to find more solutions to that, towards that. और similarly conductivity is अपना रोल प्ले करेंगी बीच के अंदर। सो दीज आर द सम थिंग्स जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि as an electromagnetic student you need to think in your mind कि these attenuations and these phases in general are frequency dependent unless you have your system जिसमें ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टूडेंट। ठीक हो गया? सो और ऑब्वियसली हम उस वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके सॉल्यूशंस साइनोसॉइडल यही हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेव। सो इधर फॉरवर्ड, सो दिस इज द सेम थिंग। ठीक हो गया? सो दैट्स समथिंग आई वुड लाइक टू से। और एक कुछ और मैं कमेंट देना चाहूंगा। आप लोग शायद सोच रहे हो, मे बी किसी के जहन में सवाल आ रहा हो कि अगर हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इतनी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन, यानी कि दिस साइनोसॉइडल सिस्टम, जब हम वो फॉर एग्जांपल डैम से ट्रांसफर करते हैं, हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, तो लॉस ही होगा। ऑब्वियसली मेटालिक कंडक्टर्स हैं तो लॉस होगा। वो जो हम बात करते हैं लाइन लॉसेज और इन सारी चीजों की बात करते हैं ना, सो इट वुड बी लॉसी सिस्टम एट फ्रीक्वेंसी। और उधर जो ये जो हायर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको बेसिकली हॉलो बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वेव मोस्टली जो है वो अलोंग द सरफेस प्रोपेगेट कर रही होती है और बीच में जो कंडक्टर में नहीं यूज हो रहा होता। अच्छा, अब इसके अंदर लॉसेस भी हो रहे थे, तो मे बी यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, फिर एसी ट्रांसमिशन होती ही क्यों है? व्हाई नॉट कीप इट टू द डीसी ट्रांसमिशन? किसी ने कभी सोचा व्हाई वी हैव एन एसी ट्रांसमिशन एंड नॉट डीसी ट्रांसमिशन? बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किसी ने बात सोची कभी?
हैव एनीबॉडी, किसी के पास है जवाब इसका? सर एसी अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो हम वो ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। या सो बस बेसिकली बिल्कुल सही बात आपने की। सो बेसिकली एसी एफिशिएंट नहीं है एज कम्पेयर टू डीसी सिस्टम, लेकिन क्योंकि ट्रांसफार्मर्स स्टेप अप वोल्टेजेस और स्टेप डाउन वोल्टेजेस और वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एसी सिस्टम्स में चल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड यू यूज एसी सिस्टम। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बताऊं जो टेक्स्ट बुक बात नहीं है, क्योंकि ये नई रिसर्चेस हैं, नई चीजें हैं। आजकल जैसे डॉक्टर हसन अब्बास जो हैं एंड डॉक्टर नवीद उल हसन एंड डॉक्टर नवाज जफर साहब, दे डू अ लॉट ऑफ दीज रिसर्च कि एसी ट्रांसमिशन, अब अभी जो डीसी ट्रांसमिशन है ना, इसको भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, एंड डीसी ट्रांसमिशन कैन रिप्लेस ऑल दीज एसी सिस्टम्स। सो मे बी in your lifetimes maybe you see that kind of transition, so don't be surprised that. So if you are interested in more of these things, you may want to talk to Dr. Hassan Abbas or something like that who are working on these, and it's a nowadays a good area of research to work on. So ठीक हो गया, तो इसके ऊपर ये मेरी बात मैंने खत्म कर ली है इस गुड कंडक्टर के ऊपर। अब मैं अगली बात करना चाहता हूँ, किसी का कोई सवाल इसके ऊपर? ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। सो देखें, एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जिसको आपने कभी डोंट उसको भूलने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है ना, ये एक्यूरेट है, दिस इज ऑल अप्रोक्सीमेशन। अगर आपकी हाई कंडक्टिविटी सिस्टम है, आप ये भी सब्स्टिट्यूट करोगे बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज, एवरीथिंग वुड वर्क आउट, सब चीजें आपकी उसी तरह कैलकुलेट होंगी। सो और रिमेंबर, वी आर सॉल्विंग दिस वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस हैं, दे आर इंपैक्टेड बाय दिस प्रोपगेशन कांस्टेंट, और हमें सॉल्यूशंस पता है इसके, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव हैं, और ये प्रोपगेशन कांस्टेंट के अंदर सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिक्टेट कर रही हैं कि वेव एटेन्यूएट कैसे होगी, उसके अंदर फेस कांस्टेंट्स कैसा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो चीजें हम ऑलरेडी ट्रांसमिशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट वाज ए रिमाइंडर फॉर दैट। अच्छा, अब आगे एक थोड़ी सी नई बात हम करेंगे, थोड़ी सी नई बात करेंगे, लेकिन एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, हम लोगों को ये तो पता है कि जब एक कंडक्टर होगा, व्हेन वी हैव ए कंडक्टर, उसके अंदर वी विल हैव दिस this ohmic current, right? And that conductor would induce losses in an electromagnetic wave. And similarly, if we have a good dielectric, we will have that omega epsilon E, right? And there are no losses there, जो कि इधर सिग्मा की वजह से होते हैं। और अगर आपको याद हो, याद क्या, अब आपको याद हो गया होगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट के अंदर ये सिग्मा बेसिकली कंडक्शन करंट की वजह से आ रहा है, ठीक है? सो अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट इन योर in your Ampere's law, if you have let's say cases बना लेते हैं, ठीक है? Number one, a material, let's say a case one, a material with with no conductive losses, right? That is sigma equals to 0. So मेरा Ampere's law क्या हो जाएगा? It would be del cross H is equal to, मैं उसमें लिख रहा हूं in the form of phasors, this would be this guy। ठीक हो गया, सिंपल ये होगा। एंड अगर एक दूसरा केस होगा, a material with no displacement current, as an example, extreme है एक, ठीक है? With no displacement current, so mera, for a very good conductor, this would be true. For a very good conductor, this would be true. This would be sigma E. और जब हम जनरल बात करते हैं, तो ये दोनों होंगे जिसको सिर्फ वो प्रोपगेशन कांस्टेंट जो हमने लिखा था, अगर आप इसको गौर से देखो, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस क्या है ऊपर, जे ओमेगा म्यू सिग्मा, जे ओमेगा म्यू
sigma plus j omega epsilon. So j omega mu sigma plus j omega epsilon. So अगर कुछ सिग्मा 0 होगा तो आपका वो सिंपली वो जो परफेक्ट डायलेक्ट्रिक वाली कम्युनिकेशन है वो होगी प्रोपगेशन कांस्टेंट, और अगर सिग्मा बहुत बड़ा होगा वो जो ऊपर हमने लिखा है जे ओमेगा म्यू सिग्मा आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब एक और लॉस होता है, एक और लॉस होता है, एक और तरह का लॉस होता है जिसको हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक लॉस। अच्छा, उसकी थोड़ी सी हम फिजिक्स और इंट्यूशन में एक्सप्लेन करता हूं विद हैंड वीविंग आर्गुमेंट्स, और फिर उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो क्या होता है डायलेक्ट्रिक लॉस? सो हियर मी आउट। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव when it is traveling in a medium, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इज अ साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट एंटर्स इन अ मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी, वो इलेक्ट्रॉन भी साइनोसाइडली मूव करना शुरू कर देगा, लाइक दिस, ठीक है। when it starts moving like this is like a dipole. आप लोगों ने डाइपोल देखा हुआ है ना प्रीवियस कोर्स के अंदर, करेक्ट? यस जी, यस सर, देखा हुआ है। देखा। सर आप रिपीट कर देंगे बात जो आप कह रहे थे? ओके, मैं बात करता हूं दोबारा। सो बेसिकली क्या होगा, अभी मैं आपको कुछ एनिमेशंस भी दिखाऊंगा इस सारी प्रोसेस के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी हाउ वेल आई एक्सप्लेन, और फिर मैं मैथ भी करूंगा, और इन द एंड ऑफ द क्लास में आपको एनिमेशंस भी दिखाऊंगा ताकि पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए। सो व्हाट हैपेंस कि देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी साइनोसाइडल है, इट्स अ साइनोसाइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल है, और ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड भी साथ है, वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो जब ये साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक, लेट्स से ये ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, यू नो इट एंटर्स, लेट्स से इट एंटर्स इन दिस ब्लॉक, राइट? इट्स एंटर्ड इन दिस ब्लॉक, दिस इज अ डायलेक्ट्रिक, दिस डायलेक्ट्रिक is made up of all those bound electrons, के साथ तो हैं इलेक्ट्रॉन, एटम्स तो हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसाइडली ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ठीक हो गया? सो व्हेन इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग साइनोसाइडली, वो इलेक्ट्रॉन एज अ डाइपोल एक्ट करेगा, और डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड दैट आल्सो प्रोड्यूसेस अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा वो अगले इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स विगलिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इस तरह वेव आगे प्रोपगेट करना शुरू हो जाएगी। ये मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं, नॉट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की भी बात करता हूं मैं, ठीक हो गई? ये बात समझ आ गई? बड़ी सीधी सा कॉन्सेप्ट है। मे बी एनिमेशन मैंने देर से दिखानी थी, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये नजर आ रही है एनिमेशन? ये नजर आ रहा है आपको? एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, राइट? नजर आ रहा है सारों को? जी सर आ रहा है। अच्छा, अब ये देखो, ये साइनोसाइडल विगल कर रहा है, उप्स ये क्या हुआ, ये साइनोसाइडली विगल कर रहा है, एंड दैट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट्स प्रोड्यूसिंग, ठीक हो गया? और ये बेसिकली आप ये समझो कि जब एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, इस तरह वो इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करेगी और इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा, एंड सो फोर्थ। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर कि नहीं पढ़ी, या किसी पॉइंट के ऊपर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस, electromagnetic radiation, have you ever been taught that before? Sir, I guess no, sir. Okay, no problem. कोई बात नहीं, बहुत आसान है, हम उसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं। सो बेसिकली खैर उसकी मैं बात अभी थोड़ी देर के बाद करूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि एक ये दिस इज अ डायपोल, राइट? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गोइंग अप एंड डाउन, एंड इट्स प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सो हर ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे इलेक्ट्रॉन को विगल करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आ गई? इतनी तो बात समझ आ गई जो मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेट्स से ये मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम की हुई है, राइट? ये आराम आराम से विगल कर रहा है। अब आप इमेजिन करो, ये सारे जो थ्रेड्स हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सारे थ्रेड्स जो हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अटैच हैं, यानी कि थ्रू आउट द मटेरियल। कैन यू इमेजिन दैट इन योर हेड? what I mean to say, ये मैं थोड़ी सी फिजिकल बात कर रहा हूं, you will not find it in the book,
लेकिन आई थॉट कि इट्स इंटरेस्टिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये साइनोसाइडल आई, ठीक है, और इसने इस इलेक्ट्रॉन को विगल करना शुरू किया और इसने आगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसने आगे इलेक्ट्रॉन को विगल किया, तो इस विगल के ऊपर सारे बैठे हुए हैं और वो विगल करते करते अगले अगले कर रहे हैं, राइट? इट्स अ होल चेन ऑफ एक्शंस. ठीक हो गया? यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? यस, यस, Yes, sir. ओके, गुड. अच्छा, अब जब ये, अब आप इमेजिन करो, इमेजिन, ओके, ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ना, इमेजिन करो आप लोगों ने ना, ये आप लोगों, लेट्स से कौन कौन खड़ा है यहाँ पर, नहीं, लेट्स से कौन कौन है, सो लेट्स से दिस इज हारिस, ये मैं हूँ, दिस इज मी, कि मैं आपको किस तरह शेक कर रहा हूँ. ये हारिस है, ये अहमद है, ये जमशेद है, और लेट्स से ये जैनब है, और ये जहरा है, और सो ऑन सो फोर्थ. हम सारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं, राइट? अब मैं, इमेजिन करो, ये एक्चुअली मैं डेमो क्लास के अंदर करता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं सकते. सो इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर कि हम सारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं. ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन दैट? कर सकते हो इमेजिन? यस Yes, सर. कर सकते हो. अब क्या हुआ है, मैंने इस हाथ को यूं यूं हिलाना शुरू किया, ठीक है, मैंने हारिस का हाथ पकड़ा हुआ है. अब मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिला रहा हूं उसका हाथ पकड़ के, और उसका जॉब ये है कि वो अपना दूसरा हाथ इसी तरह, ये इट्स अ फ्रीक्वेंसी, राइट, इसी तरह हिलाना शुरू करे. हारिस, कर सकते हो आप ऐसे? कर सकते हो ना हारिस? गायब हो गया हारिस? जी सर, कर सकता हूँ. कर सकता हूं. और हारिस के साथ जो बंदा अटैच था वो फिर एंड वो करेगा इस तरह, एंड एवरीथिंग वुड बी फॉलोड, और बेसिकली वेव प्रोपगेट करेगी. ये बात समझ आती है आप लोगों के दिमागों के अंदर, सारों के अंदर, राइट? यस. यस सर, समझ आ गया. अच्छा, अब इमेजिन करो कि मैंने वो डायल एक लगा हुआ और मैंने इसको थोड़ा तेज करना शुरू कर दिया, ठीक है, तेज करना शुरू कर दिया मैंने, तेज 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 तेज, तो हारिस भी तेज होना शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सारे तेज होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन आप लोग अपने दिमागों में इमेजिन करोगे कि एक पॉइंट आएगा जब मैं तेज तेज करूंगा, हारिस विल नॉट बी एबल टू कीप इट अप बिकॉज ऑफ वॉट एवर द रीजन, उसका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी रीजन, ही विल नॉट बी एबल टू कीप इट अप. सो मेरी फ्रीक्वेंसी तेज तेज होना शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट के ऊपर वो हारिस गिव अप कर देगा, सर तो ऐसे बहुत मुझे बता रहे हैं चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो आई एम गोइंग टू गिव अप, राइट? कैन यू इमेजिन दैट इन योर हेड? ये सारी Yes, पिक्चर sir. इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अब ये जब गिव अप कर देगा, इसका मतलब है जो मेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव आ रही थी वो लॉस में चली गई है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन प्रोपगेट ही नहीं कर रही उस एम्पलीट्यूड के साथ, तो वो लॉस ही होती जा रही है. सो बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जब एक वेव प्रोपगेट कर रही होती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुड बी अ वाटर, कुड बी अ ग्लास, कुड बी एनीथिंग जो कि डाइलेक्ट्रिक है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मटेरियल प्रॉपर्टीज, हम उस डिटेल में नहीं और जाते, हम सब इंट्यूशन में रहते हैं और अभी मैथ में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, वो एक खास फ्रीक्वेंसी के बाद उसको कीप अप नहीं कर पाएगी, एंड वी विल हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच विल एक्सपीरियंस a loss while traveling through a dielectric. और जब उसे लॉस मिलेगा तो we will lose power and we will lose energy, और ये हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है. So this is known as the dielectric loss. This phenomenon is known as a dielectric loss, and this is different in physics. This is different than the loss due to sigma जो कि conductors के through होता है, जो कि conductors में होता है. ठीक हो गया? So this is the loss. अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करें? अब बड़ा एक अच्छा सवाल मैं पूछने लगा, और जो मुझे इसका जवाब देगा ना उसको मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट दूंगा, ठीक है? लेट्स से कि मेरा जो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि ये प्योर मैथ का सवाल है, इट हैज नथिंग टू डू या लिटिल बिट आपका प्रीवियस नॉलेज रिकॉर्ड, लेकिन मैथ का क्वेश्चन है. अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, सॉरी, अगर प्रोपगेशन कांस्टेंट आपका j ओमेगा म्यू एप्सिलॉन है, राइट? तो मैं थोड़े से नंबर्स लिख लेता हूँ, यानी ये मेरे लिए आसान है, सिंबॉलिकली चीजें आप लोगों को समझ ना आए शायद. ओमेगा को मैं लिख लेता हूँ 5 पाई इंटू 10 वॉट एवर 8, म्यू को लेट्स से 4 पाई इंटू 10 टू माइनस 7, और एप्सिलॉन को मैं लिख देता हूँ
वो 4 जो भी है उसके साथ, चलो आसानी के लिए बस मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो खैर नेवर माइंड, मैं पूरा लिखता हूँ, आप लोग यही ना कोई क्या मैं कर रहा हूँ, ये इनटू 10 टू -12, ये मैंने नंबर्स लिख दिए, ठीक है। ये जब मैं प्रोपगेशन कांस्टेंट निकालूंगा ये क्या आएगा, प्योरली एक नंबर आ जाएगा जे ए, ऐसा ही होगा ना। और ये तो बीटा हो जाएगा, बेसिकली आपका बीटा होगा जो कि फेज को कंट्रीब्यूट, इसमें कोई अटेन्युएशन नहीं होगी। अच्छा अब अगर मैं ये करूं, एप्सिलॉन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश, ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे बता सकते हो क्या, और ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला जो एप्सिलॉन डबल डैश है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉस को। क्या मैंने ये ठीक किया है? क्या वाकई जब ये हमारी वो जो वेव इक्वेशंस में जब एप्सिलॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, दिस विल इंडीड प्रोड्यूस अ लॉस फॉर द वेव? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाइल थिंकिंग फॉर लेट्स से 30 सेकंड्स? ये मैंने ठीक किया, और क्यों ठीक, ये मैंने ठीक किया है, मैं आपको बताऊं ना, आई डिड इट करेक्टली, लेकिन कैसे ये लॉस प्रोड्यूस करेगा मेरी वेव के लिए? सर ये ऐसे होगा ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन डबल डैश के साथ में जे लगाया है, बिल्कुल फिर तो ये ठीक। जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर ये रियल नंबर हो जाएगा, और हाँ, रियल नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसका मतलब हमने लॉस इंड्यूस कर दिया। तो ये माइनस मैंने क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया? सर जे टाइम्स जे -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और वैसे ही हमारी वो जो एक्सपोनेंट के साथ माइनस पहले से होता है ना, तो हमें माइनस की जरूरत। बेहतरीन। ये कौन बोल रहा है, हु इज दिस? सैफ। सैफ, आपने मुझे ईमेल करनी है, ऑलराइट। ओके सर। ओके, सो बड़ी जबरदस्त। सो अब आप ये देखो, बड़ा खूबसूरत मैथमेटिकल स्टेप है। व्हाट आई एम प्रपोजिंग कि अगर मैं एप्सिलॉन को एक उसका इमेजिनरी पार्ट लगा दो ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस दिस डाइलेक्ट्रिक लॉस। और जैसे वो सैफ ने एक्सप्लेन किया है, न्यूमेरिकली देखना आसान है। जब मैं इसके अंदर लेट्स से यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, लेट्स से ये आ जाएगा, थोड़ा सा हम कर लेते हैं, लेट्स से ये जे, ये जो फ्रीक्वेंसी है जो भी है, और बीच में एक आ जाएगा रियल पार्ट और एक आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये भी यही हो जाएगा, लेट्स से a1 माइनस जे b1 आ जाएगा। जब ये इसका स्क्वायर रूट में लूंगा ये हो जाएगा, और ये j ओमेगा a1 तो मेरा वही बीटा है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा b1। इसके साथ अब ये मेरा वो प्रोपगेशन कांस्टेंट है, और इसका रियल पार्ट जो आ गया वो मेरी जो फॉरवर्ड वेव है उसमें अल्फा बिहेव करेगा, और मैंने डाइलेक्ट्रिक लॉस को कैप्चर कर लिया। सो बेसिकली जब भी आप कोई मटेरियल पैरामीटर देखोगे ना किसी भी शीट में, आपको हमेशा उसमें एक रियल पार्ट नजर आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट नजर आएगा। इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द डाइलेक्ट्रिक लॉस, नॉट दैट कंडक्टिविटी लॉस। और इसी तरह जी जी बोलो। सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। ओके, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। सो ये न्यूमेरिकल वाली बात समझ नहीं है जो मैं न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश, ये कैसे हुआ अच्छा, सर? ये देखो, पहले तक तो आप लोगों को पता था एप्सिलॉन का हम एक रियल वैल्यू ले लेते थे, ठीक है, वो इधर चली जाती थी इस प्रोपगेशन कांस्टेंट में। लेट्स से परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर ये आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट है। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब ये एप्सिलॉन जाता है तो आपका सिंपल बीटा प्योरली इमेजिनरी निकलता है जो कि फेस को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, एंड देयर इज नो अटेन्युएशन। आपको ये तो पता है कि जब भी प्रोपगेशन कांस्टेंट में रियल पार्ट होगा दैट रिप्रेजेंट्स अटेन्युएशन, ठीक है, राइट। ये कौन था मुझे बताओ बेटा, who was this? सर तुबा। तुबा जी, तुबा। So you can see this thing, ये okay, you be interacting with me तुबा। So यस सर। when you have just epsilon, you have a pure imaginary propagation constant and that represents phase, correct? यस सर। और जब ये propagation constant का real part होगा तो that represents attenuation, correct? यस सर, यस सर। अच्छा, नाउ इसके अंदर अगर इस एप्सिलॉन की जगह मैं लिख दूं इसका एक रियल पार्ट माइनस एक इमेजिनरी पार्ट भी मैं साथ लिख दूं, उसको जब मैं यहाँ पर लेट्स से न्यूमेरिकली मैं कह देता हूँ -j4 है, उसको जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो आप देखोगे ये पूरी
लेट्स से j ओमेगा स्क्वायर रूट a माइनस जे बी, कोई रियल और इमेजिनरी बन जाएगा ना इस स्क्वायर रूट के नीचे, करेक्ट? यस सर, यस सर, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा वो भी रियल और इमेजिनरी आ जाएगा, यस राइट? सर, और यस जब वो सर, रियल इमेजिनरी आ जाएगा तो फिर जब पूरे प्रोपोर्शन कांस्टेंट के अंदर एक इमेजिनरी चीज, एक रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है? और वो रियल पार्ट जो होगा ना वो इस तरह इस फॉर्म में होगा। अभी मैं मैथमेटिकली दिखाता हूं, अभी आई एम जस्ट मेकिंग द कॉन्सेप्ट हियर, एंड दैट विल प्रोड्यूस अटेन्यूएशन। सो दिस इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया? यस सर, यस सर। ओके, सो नाउ सो मैं ये बात कर रहा था, किसी भी मटेरियल को जब आप देखोगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो गिवन होगा ना, जैसे वाटर भी हो, कुछ भी हो, उसका एक रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा एट ए फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, वो स्क्वायर रूट होता है एप्सिलॉन का, तो वो भी उसी तरह होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक उसका रियल पार्ट और एक उसका यूजुअली के, छोटे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट, जो कि ये एब्जॉर्प्शन को या लॉस को बताता है। तो यहां से आपको एक बात और भी समझ आ रही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ये मटेरियल पैरामीटर्स के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स आल्सो न्यू थिंग फॉर यू, जो कि शायद आप लोगों के सामने थी लेकिन मैथमेटिकली बाहर आ गई है। अच्छा, अब अगर मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन को, अब वो एम्पेयर्स लॉ को मैं थोड़ा सा वो करूं, इंप्रूव करूं नाउ फॉर द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। सो वो जो मेरा ये वाला केस था, दिस वन, this first one with the displacement current only, no conductive losses, you will see ये क्या हो जाएगा, j ओमेगा एप्सिलॉन E था। सो एप्सिलॉन को मैं अब डाइलेक्ट्रिक लॉस के साथ रिप्लेस करूंगा, मैं कह दूंगा एप्सिलॉन डैश माइनस j एप्सिलॉन डैश E कैप। राइट हो गया? ठीक हो गया? that's this। और अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा ओमेगा एप्सिलॉन डबल डैश प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन डैश E hat del cross H। ठीक है? सो that would become this thing now। अब आप ये देखो, अगर अब यहां पे मैथमेटिकल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां पर अगर आप ये देखो कि दिस वन बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये एक टर्म आ गई है। डाइलेक्ट्रिक लॉस ना होता तो आपका यूजुअल परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होता। अब मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि जब हम लोगों ने पूरा एम्पेयर्स लॉ लिखा था, पूरा एम्पेयर्स लॉ लिखा था, जिसके अंदर डेल क्रॉस एच वाज सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई बनता था, राइट? अब आप मुझे ये बताओ, इट्स अ मैथमेटिकल थिंग, इसके यूनिट्स क्या हैं? सिग्मा के, सिग्मा के जो यूनिट्स हैं वही किसके यूनिट्स होंगे? ओमेगा एप्सिलॉन के। ठीक हो गया? और जो ओमेगा एप्सिलॉन की यूनिट्स हैं वो भी लाजमी हैं यही यूनिट्स होंगे, जिसका मतलब ये है कि ओमेगा एप्सिलॉन डबल डैश और सिग्मा बेशक फिजिकली वो डिफरेंट लॉसेस हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो हम उनको एक ही तरह ट्रीट कर सकते हैं। दोनों रियल नंबर्स आ रहे हैं एम्पेयर्स लॉ के अंदर, कोई मसला ही नहीं है। सो दिस एक्चुअली टेल्स अस कि ये एम्पेयर्स लॉ जो है दैट कुड बी मॉडिफाइड लाइक दिस, जो नजर आ रहा है बहुत ऑब्वियस है, लाइक दिस, जिसके अंदर this one is the ohmic losses, this one is the dielectric losses, and this one is whatever the phase would come up. So these two terms will contribute to the losses. One of them is the ohmic loss and one of them is the dielectric loss. So in other words, जो हमने last time loss tangent लिखा था tan phi, तो हम लोगों ने लिखा था सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन, उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा सिग्मा प्लस ओमेगा एप्सिलॉन डैश ओवर ओमेगा। सो इन अदर वर्ड्स, ये अगर एक मीडियम है जिसके अंदर सिग्मा भी है, एप्सिलॉन डबल डैश भी है, तो आपने जो लॉस जो अल्फा कैलकुलेट करना है, बेसिकली दैट वुड हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस।
एंड बेसिकली आपका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश, ये आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट बन जाएगा। नहीं, स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है ना, पूरे के ऊपर है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, या पूरे के ऊपर है। सो दिस वुड बिकम दिस, और इसका जो इसके अंदर जो अल्फा होगा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन इसका भी होगा, सिग्मे का भी और एप्सिलॉन डबल डैश का भी। और एप्सिलॉन डबल डैश जो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ओमेगा डिपेंडेंट है, जो मैंने फिजिक्स साहब से बात की थी, इंट्यूशन इज ऑल देयर। ठीक हो गया? कोई सवाल इसके ऊपर आप लोगों का, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ठीक है, सो यहां पर Sir, I have a question. जी जी बोलें। Sir, when we first introduced this complex part of the permittivity, we took sigma as 0, मतलब हमने conductivity जो थी वो 0 रखी थी, और फिर उसके बाद हम conductivity add कर रहे हैं expression में, तो आप थोड़ा सा explain कर सकते हैं? So, okay, that was just because in order to understand a single concept, I was keeping the conductivity constant, zero. लेकिन आप, the important point here is, which I was trying to explain, you can see here that the units of sigma are same, has to be same as the units of omega epsilon, because एक add हो रहे हैं, correct? Zahra थी ना? जी sir. Okay, so be interacting with me. You understand the units of sigma has to be same as omega epsilon, correct? Which means obviously omega epsilon has the same units as omega epsilon double dash, correct? Yes. Which means that omega epsilon double dash and sigma are of the same units, and we can add them. Lekin if you don't buy my argument, what I would recommend you, the way we derive this propagation constant by taking epsilon as epsilon, you know, in the wave equation initially, you take epsilon as epsilon dash minus j epsilon and do all the derivation, and you will reach to the same point. Okay, this is more like this is more like a mathematical comment जिसको हम बड़े आराम से हम सोच के क्विकली आखिरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम है दोनों के, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके इधर लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिड, दैट बिकम्स अ लॉस टेंजेंट। ठीक है, सो इसकी इस तरह की मैंने कुछ आपको असाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स भी दी हैं सॉल्व करने के लिए, एंड दैट बिकम्स दिस वन। ठीक है, कुछ और सवाल किसी का? अच्छा चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट वो बात मैंने शुरू की थी, तो आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट कि मैं वहां पे थोड़ा सा एनिमेशन दिखाता हूँ, कुछ और बातें कर लूँ, यूजुअली आई डू इट ahead in the course, but let's do it today because I think the context is there. Yes. Can you repeat this tan phi a bit? So इस केस में tan phi इस तरह कैसे आ गया? भाई, if you recall, tan phi याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लॉस टेंजेंट है जो कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का रेशियो है। Do you recall that? Right? Yes sir. सो अगर आपको याद हो, उसमें सिग्मा न्यूमरेटर में था। अब अगर मैं कह रहा हूं कि सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन डबल डैश की यूनिट सेम है, तो ऑब्वियसली मेरा लॉस टेंजेंट भी मॉडिफाई हो जाएगा, जो कि उसके अंदर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा न्यूमरेटर के अंदर। आप इसका कंक्रीट डेरिवेशन कर सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। यहां पर तो मैं मैथ के साथ इस कंक्लूजन के ऊपर राइट अवे पहुंच रहा हूं, बाय लुकिंग ओवर दीज इक्वेशंस एंड इंट्यूटिवली एंड बाय लुकिंग सम मैथमेटिकल कमेंट्स। ठीक है, क्योंकि सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन डबल डैश की यूनिट सेम है, दे हैव टू बी, और अगर वो दोनों प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एक मटेरियल के अंदर, तो दोनों ऐड होंगे। ठीक है, ठीक है जमशेद? Yes sir. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू वो जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, मैं वो उसके ऊपर वापस जाता हूं। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो कभी आपने बात भूलनी नहीं है, एक जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है ना, एक्सेलरेटिंग चार्ज, एक्सेलरेशन क्या होता है? कौन होगा मेरे साथ इंटरेक्टिव अभी? लेट आई वांट टू बी इन इंटरेक्टिव, ऐसे मुझे मजा नहीं आता।
चलो लेट्स आज किसको इंटरेक्टिव, कोई वॉलंटियर है इंटरेक्टिव होने के लिए या मैं खुद ही पिक कर लूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके कौन है ये? This is Tuba? Sir, Tuba. Okay. Yes, sir. All right. So Tuba is a volunteer. So can you see that this charge has an acceleration? आप देख सकते हो इसका acceleration है charge के अंदर? Yes, sir. कैसे वो कैसे आपको पता चल रहा है इसका acceleration है? क्योंकि Sir, change in velocity. हाँ, क्योंकि velocity का शायद magnitude नहीं change हो रहा, direction change हो रही है. So acceleration Yes, is sir. all about this is an accelerating charge. So whenever you have an accelerating charge, it will produce a radiation. अच्छा radiation का क्या मतलब है? Radiation का मतलब ये है कि एक electromagnetic wave propagate करेगी. और electromagnetic wave का क्या मतलब है? वो electromagnetic wave जिसके अंदर E और H field होगा and they both will propagate. अब अगर आपको याद हो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन, फैराडेज लॉ क्या कहता है? डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T, यही कहता है ना फैराडेज लॉ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब डेल क्रॉस E क्या बताता है मुझे? कि स्पेशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बताता है ना? Yes, sir. सो ये जो चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज है इसमें स्पेशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ हुआ है कि नहीं है? Sir, है. सो इसका मतलब है इसके साथ एक टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी फिर एसोसिएटेड होगा. जी सर होगी. अच्छा फिर अगर टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा तो वो ऊपर नीचे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम चेंजिंग भी है. जी सर. तो इसका मतलब जो एम्पेयर्स लॉ है उसमें भी H और E दोनों कपल्ड होंगे. इसका मतलब है हमने भी सॉल्व किया है, वेव ट्रेवल करेगी और ये वेव ही है जो ट्रेवल कर रही है. ऐसा ही है ना? जी सर. सो एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज मस्ट फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब मैं आपको दिखाता हूं एक चार्ज जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है. It's just a moving charge. It's a static electric field, no electromagnetic wave there. It's just, these are just the field lines. All right? जी सर. Okay, so अगर मैं अब इसको, let's say ये खड़ा है चार्ज, मैं एक क्विक सा इसको बम्प दूंगा, that's an electromagnetic wave because इसमें acceleration produce हुआ है. ठीक है? Yes, sir. यहाँ पर एक important बात ये है कि an accelerating charge will produce an electromagnetic radiation. अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी और ये थोड़ी सी more physics oriented बात है जो कि आनी भी चाहिए. Let's look over a more practical thing. So yes, Tuba, you can switch off your mic then. I think I have you. Okay, so let's look over this. Can you see this applet, right? इसमें क्या है? ये आपका सेल फोन का एंटेना है, टावर का, और फ्री स्पेस है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. हाउ आवर सिग्नल, लेट्स से कि ये चलो ये तो टीवी का एंटेना, इमेजिन करो कि ये सेल फोन का टावर है और ये यहाँ पर आपका सेल फोन है और इसमें आपका एंटेना है सेल फोन का. ये मेरा एरो विजिबल हो रहा है आप लोगों को? यस सर, इट्स विजिबल. ओके, सो अब जब ये एंटेना जो है जो सेल फोन का है, सॉरी टावर का है, इसके नीचे एक साइनोसॉइडल सोर्स लगा हुआ है. वो साइनोसॉइडल सोर्स इस इलेक्ट्रॉन को विगल करता है. विगल करता है तो देखते हैं क्या होता है. जब ये विगल करता है, ये देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है विद द स्पीड ऑफ 1/μ एप्सिलॉन. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपेगेट करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 1/μ एप्सिलॉन, तो ये मेरे सेल फोन के एंटेने पे पहुंचती है तो उसका इलेक्ट्रॉन विगल करती है. वो हाथ पकड़ने वाली सेम अपने एग्जांपल ज़हन में रखो, हाथ ना पकड़े हुए. एंड वंस दिस स्टार्ट्स विगलिंग, यू स्टार्ट रिसीविंग द सिग्नल. डज दैट मेक सेंस? तो फ्री स्पेस के अंदर दैट्स हाउ द वेव्स प्रोपेगेट. यू डोंट नीड मीडियम टू प्रोपेगेट. जैसे अब आप ये सोचो, वो जो दूर सितारे हैं हम तक कैसे वो हम देख रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, वो दूर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, हमारी आंख के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो विगल हो रहे हैं एंड वी आर एबल टू सी दोस. सो दैट्स हाउ दीस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट. और ये बेसिकली क्लास, जी बोलो. सर इस एनिमेशन में आप दिखा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तब क्या होगा, एम्पलीट्यूड वगैरह बढ़ेगा तब क्या लो होगा? ये देख लेते हैं, ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और दैट्स इट. फ्रीक्वेंसी बढ़ने का वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज, जैसे ये तो एनवायरनमेंट है ना, लाइक सेल फोन जो है 900 मेगाहर्ट्ज पे होते हैं, उसकी वैरायटी ऑफ रीजंस हैं. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आपको पता है, स्मॉग या फॉग आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लॉसेस हो सकते हैं, ऑल दैट स्टफ उसकी वजह से हैं. एम्पलीट्यूड अगर मैं ज्यादा कर दूं, दैट्स हाउ दिस वुड बिहेव. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, एक्सेलरेटिंग charge, accelerating
इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस ए रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन का दूसरा वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, ठीक है, और वो ऐसे ट्रेवल करती हैं, और मटेरियल के अंदर मैंने बताया वो कैसे ट्रेवल करती हैं, और फ्री स्पेस में दैट्स हाउ दे ट्रेवल। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये भी दिखा दूं, लाइक से फुल फील्ड, दैट्स ओके, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, जैसे ठहरो एक सेकेंड, लेट मी स्टॉप इट एंड लेट मी रन इट, ताकि आपको कुछ थोड़ी सी और इंट्यूशन मिले इस चीज के अंदर। जस्ट सर अगर हम अपने साइनोसाइडल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कर दें कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट ही ना करे, तो फिर ट्रांसमिशन कैसे होगी? नहीं, अगर क्या करें, अगर हम सर जो साइनोसाइडल जनरेटर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दें तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऑसिलेट फिर करेगा कि नहीं करेगा एंटीना में? डिपेंड करता है वो एंटेना का मटेरियल कैसा है, एंड यू नो अगर 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 एज लॉन्ग एज वो, जब भी मैंने बात की थी कि सोर्स के साथ एंटेना का इलेक्ट्रॉन जो है वो कोप अप कर सकता है, ऑसिलेट करता रहेगा, तो यस वी विल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आप, इसीलिए सेलुलर कम्युनिकेशन जो गीगाहर्ट्ज पे नहीं होती, मेगाहर्ट्ज में होती है, क्योंकि वो कोप अप कर लेता है, गीगाहर्ट्ज में नहीं कर सकता कोप अप। गीगाहर्ट्ज में यू नीड टू गो टुवर्ड्स योर वेव गाइड्स, डायरेक्टेड वेव गाइड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब वो मेरी एनिमेशन किधर चली गई, किधर चलेगी, मैंने किधर से निकाली थी, क्या था उसका नाम, कौन सा था, ये कौन सा था, नहीं ये नहीं थी, अच्छा मेरे से इसमें नहीं, ओके नेवर माइंड, मुझे भूल गया, मुझे टाइम लगेगा उसको निकालने में, कोई बात नहीं, आपको बात तो समझ आ गई, आई वांट टू मूव ऑन, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा एंड यू कैन प्ले विद इट। तो जो यहाँ पे जो टेक होम मैसेज है, जो टेक होम मैसेज है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और वो वेव इक्वेशन को रिस्पेक्ट करता है जो हमने डिस्कस किया। आई थिंक सारे जो हमारी मैथ वो कनेक्ट हो रहा होगा आपके दिमाग के अंदर, हाउ थिंग्स आर वर्किंग। अच्छा, अब मैं आई वुड लाइक टू डू एन एग्जांपल हेयर इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, ताकि थोड़ी सी चीजें बहुत क्लियर हो जाए, कोई इसमें आप लोगों की एम्बिग्विटी ना रह जाए। वो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करने की कोशिश करने लगा हूँ, अ वेरी नाइस a very nice illustrative example of these things which we discussed. अच्छा, by the way, assignment आप लोगों ने देखी है, उसमें मैंने बड़ी practical कुछ चीजें डाली हैं, those are all final exam problems, so I think you will have fun solving those problems, open-ended किस्म की problems, and let's see what you can come up with it. अच्छा, let's say कि ये मेरा समुंदर है, ठीक है, समुंदर है और इसके अंदर एक मेरी सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन है, ठीक है, दिस इज सबमरीन, माय ड्राइंग इज वेरी बैड, और यहाँ पर मेरा एक प्लेन है, ऑलराइट, ओह बहुत ही बुरा प्लेन बनाया है, बट एनीवेज, ठीक है, दिस इज अ प्लेन, और इसने कम्युनिकेशन करना है इस सबमरीन के साथ, ऑब्वियसली यहाँ पर एक एंटेना लगा हुआ है सबमरीन के साथ, राइट, और इसने दिस सबमरीन नीड्स टू कम्युनिकेट विद दिस प्लेन। अब ये जो सबमरीन है ये है सी वाटर के अंदर, राइट, सी वाटर के अंदर है, सी वाटर की जो कंडक्टिविटी है ना, दैट इज 4 सीमेंस पर मीटर। ये आपकी मैं एग्जांपल है 6.7, उससे इंस्पायर हो गई, मैंने प्रॉब्लम बनाई, ये है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज इंस्पायर्ड बाय दैट एग्जांपल, आई जस्ट मॉडिफाइड दैट। सो सिग्मा इज इक्वल टू 4 सीमेंस पर मीटर है, और एप्सिलॉन इसका है 81 एप्सिलॉन नॉट, म्यू इसका म्यू नॉट है, ठीक है। हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं एज एन एग्जांपल कि ये लेट्स से दैट दिस गाय, ये जो एंटेना की कैपेसिटी है ना, जो एंटेना की कैपेसिटी है, दिस कैन स्मॉलेस्ट जो ये मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकती है ना, या स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट कर सकती है, वो कर सकती है 1 माइक्रोवोल्ट्स पर मीटर का, ठीक है। ये इसकी जो भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है, ये डिटेक्ट, इससे जो लो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ये डिटेक्ट नहीं कर सकती, राइट। और ये मेरा जो जहाज है ना, ये मैक्सिमम जो है ना वो 1000 लेट्स से 10,000 वोल्ट्स पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड
अपने एंटेना से शूट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, कम्युनिकेशंस है। ऑब्वियसली आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे, वो जो मॉड्यूलेटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रन करेगा, एंड दैट्स ऑल दैट पार्ट। सो ये यहाँ पहुंचेगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कितनी मेरी ये सबमरीन जो है वो डीप हो कि उसको सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो 1 माइक्रोवोल्ट्स पर मीटर से ज्यादा मिले। और आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें सिग्मा है, फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होगी, लेट्स से कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से एज एन एग्जांपल, लेट्स से इफ द फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज एज एन एग्जांपल, कम्युनिकेशन 1 मेगाहर्ट्ज है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, कंडक्टिविटी है, तो लॉसेस तो होंगे। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं ये वाला, हम वी कैन ऑलवेज प्लग इन दैट प्रोपेगेशन कांस्टेंट वो कैसे, लेकिन आई थिंक इंसाइटफुल ये है कि हम ये चेक करें कि ये मीडियम कैसा है। तो लॉस टेंजेंट चेक करते हैं। एप्सिलॉन डबल डैश जो है मैं वो 0 ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। सो सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन अगर मैं चेक करता हूं और मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं सिग्मा 4 ओवर ओमेगा जो 1 मेगाहर्ट्ज लेके 2 पाई इनटू, और यहाँ पर मैंने आपको एक बड़ा खूबसूरत प्रैक्टिकल बात बतानी है इस एग्जांपल के थ्रू। 2 पाई एंड एप्सिलॉन इज 81 इंटू 8.854 इंटू 10 टू माइनस 12 करूंगा तो ये मेरा जो नंबर आता है ना, दिस बिकम्स 888। इसका मतलब है दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर। सी वाटर 1 से बड़ा है, लॉस्ट वेरी गुड कंडक्टर है। तो I can apply those good conductor relationships. Good conductor relationships में ये मुझे पता है कि मेरा जो अल्फा है that is pi f mu naught sigma, ये मेरा अल्फा है गुड कंडक्टर के लिए अप्रोक्सीमेटली। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज सारी, तो मेरा अल्फा जो आता है वो 3.974 नेपियर्स पर मीटर आता है। वंस आई गेट दैट, अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेरा कितना डीप जा सकता है। तो अगर मेरी जो मेरा डिटेक्टेड फील्ड है वो 10 टू माइनस 6 वोल्ट्स पर मीटर है, स्टार्टिंग फील्ड मेरा 10,000 है और अल्फा मेरा क्या है 3.974 इंटू लेट्स से डेप्थ डी कर लेते हैं। और ये आपको पता है वो क्योंकि फॉरवर्ड वेव है और मैं यहां पर सारे रिफ्लेक्शंस को इग्नोर कर रहा हूं। हम अगली क्लासेस के अंदर मैं इसी एग्जांपल को दोबारा ले गया जब मैं रिफ्लेक्शंस को बीच में डाल लूंगा। यानी ऑब्वियसली यहां पे वेव आएगी, देयर वुड बी सम रिफ्लेक्शंस, वी आर इग्नोरिंग दैट राइट अवे, देयर आर नो रिफ्लेक्शंस गेटिंग देयर। तो ये लेट्स से यहां पर 10,000 मेरा फील्ड है और उसके बाद ये नीचे जा रहा है जो कि अटेन्यूएट हो रहा है लाइक दिस। तो अब ये इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरा डी आता है 5.794 मीटर्स। कैन यू बिलीव इट? यानी कि सबमरीन ने अगर 1 मेगाहर्ट्ज पे कम्युनिकेट करना है तो इसको ये पानी के बड़े करीब आना पड़ेगा। उसको मे बी अपना एंटेना थोड़ा सा बाहर निकलेगा, फिर जब वो कोई वो एनिमी होगा वो देखेगा, वो रख के उसको बम मार देगा एंड दिस विल गो अवे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम एट हायर फ्रीक्वेंसीज। अब आप देख सकते हो 1 मेगाहर्ट्ज से ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। सो व्हाट इफ वी डू इट एट 100 हर्ट्ज? 100 हर्ट्ज पे अगर हम चेक करें, 100 हर्ट्ज पे पहले चेक कर लेते हैं वो जो आपका लॉस टेंजेंट है उसी तरह कैलकुलेट करें तो वो स्टिल बहुत बड़ा आता है, दैट इज 10 टू वेरी तो इट्स स्टिल अ वेरी गुड कंडक्टर। सो 100 हर्ट्ज के ऊपर मेरा जो अल्फा है, यू कैन सी दिस थिंग, तो मैं आपको पॉइंट बड़ा बार बार मेक कर रहा हूं। 100 हर्ट्ज पे अल्फा मेरा बहुत कम होगा। कितना कम होगा? वो 1 मेगाहर्ट्ज था और यानी कि 10 to it would be reduced as compared to 1 megahertz 1 megahertz and this would be actually जब आप ये pi f mu sigma करेंगे for 100 hertz, this is 0.03974. so which means अगर मैं वो वापस इक्वेशन लगाऊं 10,000 E minus 0.03974 D और उसको मैं D को कैलकुलेट करूं, this turns out to be approximately 580 meters.
अब I can go half a kilometer down and I would be still fine. So you can see ये जो submarine communications है, ये practical बात है, it is basically done at very low frequencies. Because के signal की attenuation इतनी होती है sea water के अंदर, high frequencies के अंदर आपको signal मिल नहीं पाता. और अक्सर अगर आप शायद आपने communications के अंदर पढ़ा हो, I'm not sure, कि you need actually वो जो modulation है वो high frequencies पे करनी पड़ती है in order to transfer the signal. तो अक्सर you know there is a compromise कि आप चलो submarine को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो and to try to get that. But that's something very practical. और take home message यहाँ पर ये है that frequency dependent attenuation है और frequency को आपने कभी भूलना नहीं है अपनी electromagnetic wave propagation problems के अंदर. उसके जो material parameters है वो भी frequency dependent होते हैं. So that's something. जी जी. सर अगर एक सबमरीन ने दूसरी सबमरीन से कांटेक्ट करना है या फिर एक प्लेन ने दूसरे प्लेन से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसीज होंगे कि लो होंगी? नहीं, अब मसला ये है जमशेद कि सी वाटर का सारा प्रॉब्लम, अगर प्लेन ऊपर है, ठीक है, ऊपर है प्लेन, तो फिर तो वो फ्री स्पेस में, उधर तो सी वाटर है ही नहीं, कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो वी कैन यूज जो हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज हैं. लेकिन अगर सी वाटर के अंदर कम्युनिकेशन होना है, बिकॉज ऑफ दीज पैरामीटर्स, सिग्मा वहां पर पड़ा हुआ है, so you need to figure out कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने करना है. You can't use high frequencies because losses इतने हाई. आप देख सकते हो 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आप 5 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकते. यानी कि कितना हमने कैलकुलेट किया था, 5.8 मीटर्स, इससे ज्यादा आप जा ही नहीं सकते. जी ये तो एयर से ये हम सी वाटर में जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का आ रहा है. नहीं वो बेसिकली आप सी वाटर के अंदर होगा. नहीं वो बेसिकली आप ये समझो ना, ये 10,000 मीटर राइट एट द सी वाटर के स्टार्ट के ऊपर है. समझो ये ब्लॉक है और यहाँ पे 10,000 मीटर हम नीचे जा रहे हैं. अब सी वाटर के अंदर हो तो मसला तो सारा इस सिग्मे का है. अगर आप इस सिग्मे के मीडियम में हो, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि अल्फा ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है. तो मतलब अगर हम सी वाटर के अंदर ही एक सबमरीन दूसरी से करी होगी तो तब भी लो फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए. देखो ना, आप अगर एक सबमरीन दूसरी सबमरीन से कर रही है बात, तो है तो सिग्मा से ही गुजर रहे, सिग्मा स्टिल इसी अल्फा के मुताबिक काम करेगा क्योंकि स्टिल इट्स अ हाई कंडक्टिव मीडियम. तो अगर आपने बात करनी है 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, तो आपके पास रेंज 5.79 मीटर से ज्यादा नहीं है. ये बात समझ आई है? कंफ्यूजिंग हो गई बात? नहीं समझ आ रही? सर समझ आ गई है ऑलमोस्ट. हाँ देखो ना, हम वो मैंने आई थिंक कंफ्यूजन ये हो गई है कि मैंने जहाज को थोड़ा एयर में दिखा दिया है. इमेजिन करो ये 10,000, ओके लेट मी क्लीन इट अप. इमेजिन करो कि ये ब्लॉक है सी वाटर का, यहां पर स्टार्ट में 10,000 है वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है, और इसने नीचे जाना है, तो दैट इज द डी वी आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि मैं ज्यूम कर रहा हूं कि फ्री स्पेस में कोई अटेन्युएशन नहीं है, ठीक है. ऑल्दो आप अगर प्रैक्टिकली इसको देखना शुरू करोगे तो ये सारा ह्यूमिड होगा एंड ऑल दैट स्टफ, वो बीच में वाटर पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स अपनी कंडक्टिविटी होगी, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इट इज यू नीड टू एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स इन योर इक्वेशन बिफोर एक्चुअली कैलकुलेटिंग व्हाट इज बेस्ट. बट एक जो बॉटम लाइन ये है कि सबमरीन के साथ कम्युनिकेशन लो फ्रीक्वेंसीज पे ही होगी, हाई फ्रीक्वेंसीज पे आप नहीं जा सकते. यू नीड टू फिगर आउट ऑल योर सिस्टम. और फिर उस पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और है, वो ये है कि जो एंटेना की डायमेंशंस है ना, वो डिपेंड करती हैं आपकी, यानी कि बेसिकली जो एंटेना, मैं कॉन्क्रीटली बात ऑब्जर्व नहीं कर रहा, एंटेना की डायमेंशंस होती हैं ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना तो वेवलेंथ छोटी होती है, तो एंटेना की डायमेंशन भी छोटी होगी. जब लो फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज यू नो दैट C is equal to F lambda, lambda is equal to C over F. छोटा फ्रीक्वेंसी this lambda would be very high और एंटेना बहुत लंबा हो जाएगा. So these are all challenges, engineering challenges है जिसको हमें टेक केयर करने हैं और देखना है क्या बेहतर है. इसीलिए सबमरीन्स जो है ना, जब वो डीप वाटर में नहीं जाके कम्युनिकेशन करती, वो थोड़ा सा ऊपर आती हैं पानी की सरफेस के पास, कि स्टिल उनका एंटेना भी विजिबल ना हो एनिमी को, एंड दे कम्युनिकेट विद देयर बेसिस, ठीक है. So these are all the problems. इसमें सारी जो बात सारी वो यही है, this alpha and this frequency dependent loss.
So I'm over time. I'm gonna Sir? stop here. We can still ask questions, Jamshed. Let me stop this video. So because जो recorded देख रहे हैं, I don't want them to have a lot of panic attacks. कितना लंबा वीडियो आ गया. So चलें, अपना ख्याल रखें. अब आप लोग अपनी assignment 5 कर सकते हैं complete. And I'm gonna see you on Monday. So जो लोग online हैं, I can still be with them for answering any of their questions. So Allah Hafiz.